Hi friends, welcome back to my channel. Today we will see मुल्कराज आनंद. आज हम देखेंगे मुल्कराज आनंद, इंडियन इंग्लिश राइटर. जैसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे इंडियन राइटर्स का प्रिपरेशन किया है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. So Mulkraj Anand born in 12 December 1905 and died in 28 September 2004. He was an Indian writer in English recognized for his depiction of the life of the poorer castes. जितने भी उनके वर्क हैं उसमें उन्होंने आउटकास्ट पीपल, पुअर पीपल, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, these are the main depiction, or he is recognized for such a writing. Then he, together with R.K. Narayan, Ahmad Ali and Raja Rao, was one of the first India-based writer in English to gain a international readership. Anand is admired for his novels and short stories, which have acquired the status classic of modern India. इसके साथ ही उनके नॉवेल्स आते हैं अनटचेबल. पहला जो उनका नॉवल है, उनके अगर फेमस वर्क देखे जाए तो उसमें अनटचेबल मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है, विच वॉज पब्लिश इन 1935, जो 1935 में पब्लिश हुआ था. द नॉवल इस्टेब्लिश आनंद एज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंग्लिश ऑथर. इस नॉवल ने मुल्कराज आनंद को इंडिया का मोस्ट लीडिंग ऑथर बना दिया. एंड द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज आंट्स एक्सपीरियंस when she had a meal with a Muslim women and people was treated as an outcast by her family. तो किस तरह से कास्ट सिस्टम था इन ब्रिटिश राज और बिफोर ब्रिटिश राज. द प्लॉट ऑफ दिस बुक इज आनंद फर्स्ट रिवॉल्व्स अराउंड द आर्ग्यूमेंट फॉर इरेडिक्टिंग द कास्ट सिस्टम. वो सटायर करते हैं कास्ट सिस्टम पे. अनटचेबल में दिखाया जाता है डिपिक्ट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ भाका, अ यंग स्वीपर, साफ सफाई करने वाला, who is untouchable due to his work of cleaning lanterns. वो बाथरूम लैंटर्न्स चेक क्लीन करने का काम करता है. तो इसमें और कैरेक्टर है, लाका है, भाका है, उसकी बहन है सोहिनी. सोहिनी को एक पंडित मोलेस्ट करने की कोशिश भी करता है. सो दिस इज़ हाउ ही डिपिक्टेड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया in Untouchable. After that, there is a famous work Coolie. Coolie was published in 1936. It is the second book written by Mulkraj Anand. मुल्कराज आनंद की ये सेकेंड बुक है. आनंद reinforced his position as one of India's leading English author. जैसे ही उनके अनटचेबल बहुत फेमस बुक हुई, वैसे कूली ऑल्सो गिविंग हिम recognized leading figure as an English author in India. The book is highly critical of British rule. ये बुक ब्रिटिश रूल पे हाईली क्रिटिसाइज करती है, इंडियाज़ कास्ट सिस्टम पे क्रिटिसाइज करती है. इसका प्लॉट जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड देयर इज़ अ बॉय मुनु, 14 years old बॉय है, एंड हिज plight ड्यू टू पावर्टी, exploitation added by the social and political structure in place. आनंद हियर ट्राई टू ब्रेक द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. सो इस वर्क में ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो है इंडिया में, उसे ब्रेक करने की कोशिश मुल्कराज आनंद करते. आफ्टर दैट हिज थर्ड नॉवल comes To Leaves and a Bird, which was published in 1937. To Leaves and a Bird is a novel by Mulkraj Anand, first published in 1937. Like his other novels, this one also deal with the topic of oppression of the poor people, about the peasant, working class who tries to protect his daughter from a British soldier, how they inhumanly treated the Indian people, those are live in poverty or the poor class. The story is based in the tea plantation of Assam. आसाम के चाय के बागान या टी स्टेट से रिलेटेड स्टोरी है. दिस बुक वॉज सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड एज ए हिंदी फिल्म राही. इस पे राही बाय देवानंद पे पिक्चराइज हुई बुक का पिक्चराइजेशन या अडॉप्टेड भी हुई है हिंदी फिल्म में. देन रिलीज इन इंग्लिश एज द वेफेरर. So the book depicts in detail the concept of haves and have nots and exploitation of one at the hand of the other in predominance India. After that there is another novel, The Village, which was published in 1939. If there is a question for chronological order, then take out your pen and paper and write down the chronological order. Lament on the Death of Master of Arts, which was published in 1939. Then Across the Black Waters, 1939, the same year.
आफ्टर दैट द सॉर्ड एंड द सिकल 1942। 2013 के महाराष्ट्र से एग्जाम में ये क्वेश्चन है, द सॉर्ड एंड द सिकल रिटन बाय हुम? सो द आंसर इज मुल्कराज आनंद, और वो पब्लिश हुई थी 1942 में। देन द बिग हार्ट 1945, सेवन समर्स द स्टोरी ऑफ एन इंडियन चाइल्डहुड, जो पब्लिश हुई थी 1951 में। देन आता है उनका फेमस वर्क द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस विच वॉज पब्लिश इन 1953। देन द ओल्ड वीमेन एंड द काउ which was published in 1960. The Road also a famous novel by Mulkraj Anand, published in 1961. Then Death of Hero, Ifita for Makbul, Sherwani 1964. Then Morning Face in 1968. Confession of Lover, which is published in 1976. Gauri also a famous work written by Mulkraj Anand, जो पब्लिश हुआ था 1976 में। उसके बाद आता है उनका अनदर वर्क द बबल, और along with the novel he wrote the short story collections also, some letters also. So the bubble also a famous work. Then Nine Moods of Bharata, the novel of a pilgrimage, 1998 में आया था। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑन अ वाइट एलिफेंट विच वॉज पब्लिश इन 2002। देन उनके ये हो गए उनके नॉवेल्स, और उसमें से फेमस नॉवल है कूली, अनटचेबल। उसके साथ उनके आते हैं शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। देखो जो मेजर ऑथर है उनमें से माइनर वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, और जो माइनर ऑथर है उनके तो मेजर वर्क पूछे ही जाते हैं, बट मेजर ऑथर जो होते हैं उनके मेजर वर्क के बारे में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और माइनर वर्क के भी, माइनर वर्क पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिससे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में आते हैं द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज विच वॉज पब्लिश इन 1934। Then the Barbarous Trade Union and Other Stories in 1944. The Tractor and Corn Goddesses and Other Stories, which is come in 1947. Then Reflection on the Golden Bed and Other Stories, 1953 में आया था ये वर्क। उसका पब्लिकेशन भी किस में ये पब्लिश हुआ था वो ब्रैकेट में दिया है। देन द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज वॉज पब्लिश इन 1959। उसके बाद उनका और एक फेमस स्टोरी कलेक्शन माना जाता है लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, जो आया था 1966 में। उसके बाद उनका नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, 1973। उसके बाद आता है सेलेक्टेड स्टोरीज ऑफ मुल्कराज आनंद, 1977, एंड थिंग्स हैव अ वे ऑफ वर्किंग आउट एंड अदर स्टोरीज, जो आई थी 1998 में। उसके बाद उनका एक लास्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था द गोल्ड वॉच। नॉवल और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के साथ साथ उनके चिल्ड्रन लिटरेचर के वर्क भी फेमस है। जैसे उनके चिल्ड्रन वर्क में आता है इंडियन फेरी टेल 1946, द स्टोरी ऑफ इंडिया 1948, द स्टोरी ऑफ मैन 1952, मोर इंडियन फेरी टेल्स इन 1961, the story of Chacha Nehru, a slip of tongue, 1965, the story of Chacha Nehru, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन मोरा न्यू दिल्ली नेशनल बुक ट्रस्ट में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उनका चिल्ड्रन लिटरेचर में आता है फोक टेल्स ऑफ पंजाब, 1974, दो ही इज रिलेटेड टू द पंजाब। अ डे इन द लाइफ ऑफ माया ऑफ मोहनजोदारो, A Day in the Life of Maya of Mohenjo-daro and Harappa Sanskriti. So it is also a children work, comes in or categorized under the children literature. उसके बाद आता है The King Emperor's English or the Role of the English Language in the Free India. उसके बाद आता है Some Street Games of India, कुछ स्ट्रीट गेम्स ऑफ इंडिया। देन चित्रलक्षणा विच इज स्टोरी ऑफ इंडियन पेंटिंग। इसके बाद कुछ बुक्स उन्होंने आर्ट्स पे भी लिखे हैं, पर्शियन पेंटिंग है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट है, हाउ टू टेस्ट अ पिक्चर, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, देन द इंडियन इन कलर, कामाकाला, द डांसिंग फूट, द थर्ड आई, द वल्केनो। दीज आर दी रोट ऑन अ आर्ट और नोन एज अ बुक्स ऑन आर्ट, आर्ट पे पेंटिंग पे लिखे गए वर्क्स। पोएट पेंटर, स्पेंडर्स ऑफ हिमाचल हेरिटेज,
उसके बाद उनके कुछ लेटर्स आते हैं। लेटर्स ऑन इंडिया, ऑथर टू क्रिटिक, द लेटर ऑफ मुल्कराज आनंद, कैलीमैन एंड गांधी, ओल्ड मिथ एंड न्यू मिथ, आनंद टू आल्मा, लेटर ऑफ मुल्कराज आनंद and author to critic. Then the letters of Mulkraj Anand in 1974, which was published in 1974. Caliban and Gandhi, also a letter to Bapu from Bombay. Old myth and new myth, letter from the Mulkraj Anand to KVS Murthy. So these are the letters also famous. First of all, we already see the novels, short story collection, children literature, then the letters and other work also. अदर वर्क में जो करीज एंड अदर इंडियन डिशेस है, ये मैच द पेयर्स में क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र सेट एग्जाम में, करीज एंड अदर इंडियन डिशेस 1932. देन गोल्डन ब्रेथ, स्टडीज इन 5 पोएट ऑफ द न्यू इंडिया. उसके बाद आया था उनका वर्क, अदर वर्क्स, मार्क्स एंड एंजल्स, लॉस एंजल्स. देन एपोलॉजी ऑफ हीरोइज्म एंड एसे इन सर्च ऑफ फेथ. Then homage to Tagore on education. These works are after the independence. Then lines written on the Indian air. So these are the other work of मुल्कराज आनंद. साथ ही उनको कुछ नोटेबल अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला है फॉर मॉर्निंग फेस. उनका जो वर्क है, कौन से वर्क के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो वो है मॉर्निंग फेस. 1968 में ये नॉवेल आई थी. तो मुल्कराज आनंद की अनटचेबल, कूली एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड्स, और उसके साथ ही उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के नाम भी, टाइटल ओनली हमको याद रखने हैं. टाइटल पे क्वेश्चन आते हैं मैच द पेयर्स और ऑथर और वर्क में. ऐसे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.